کہ ناظم آباد میں آن لائن فوڈ ڈیلیوری کمپنی کے گودام میں لگنے والی آگ پر تقریباً 8 گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ ناظم آباد میں آن لائن فوڈ ڈیلیوری کمپنی کے گودام میں اچانک آگ لگ گئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی اطلاع پر فائر بریگیڈ اور ریسکیو ادارے فوری پہنچے۔ 2 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا، لیکن 4 منزلہ عمارت کی بیسمنٹ میں رکھے کوکنگ آئل اور دیگر اشیاء میں دوبارہ آگ لگ گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ آپریشن میں فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ گودام میں رکھا لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں کے مطابق ویئر ہاؤس بیسمنٹ میں ہونے کے باعث مشکلات پیش آئیں۔ عمارت میں کام کرنے والوں نے بتایا کہ بلڈنگ 400 گز پر قائم کی گئی ہے، جس میں کمرشل سرگرمیاں جاری تھیں، لیکن آگ بجھانے کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا۔ اس وقت آگ لگی ہے، اس وقت میں سب سے پہلے موجود تھا۔ رینجرز کی موبائل آئی ہے، اس کے بعد 2 فائر فائٹرز آئے جو فائر بریگیڈرز کی گاڑیاں ہیں۔ اس کے بعد فائر فائٹرز نے جو ہے بہت اچھا کام دکھایا ہے، بہت تیزی سے۔ یہ میرے خیال سے کوئی 8:30 9 کا ٹائم تھا، اس وقت آگ لگی ہے۔ نیچے جو ہے یہ بیسمنٹ ہے، فوڈ پینڈا والوں کا جو گودام بنا ہوا ہے، یہاں پہ سارا سامان ہوتا ہے، ڈیلیوریز جاتی ہیں یہاں سے، تو ادھر آگ لگی ہے۔ فی الحال تو 3 منزلیں عمارت ہے، نیچے فوڈ پانڈا مارٹ ہے، اس کے بعد بیسمنٹ کے اندر آگ لگی ہے بیسیکلی۔ اوپر فرسٹ فلور پہ ہمارا آفس ہے، اس کے بعد پھر جم ہے، اس کے بعد ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے۔ تقریباً 8 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم نقصان کا تخمینہ کولنگ کے عمل کے بعد لگایا جائے گا۔ کیمرامین سید عاقب کے ساتھ اسامہ ملک، سٹی 21۔ ناظم آباد میں آن لائن کمپنی کے گودام میں آتشزدگی، آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔ آگ لگنے کے 20 منٹ کے اندر گودام میں رکھا سامان جل گیا۔ متعدد کولڈ ڈرنکس اور چپس وغیرہ کے پیکٹس بھی راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ انوشا جعفری وہاں موجود ہیں، ان سے جانیں گے، بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیے اس وقت ہم ناظم آباد بورڈ آفس کے قریب موجود ہے، جہاں پر رات گئے جو ہے وہ فوڈ پانڈا کے جو ویئر ہاؤس ہے اس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت صورتحال میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آگ جو ہے وہ لگی تھی اور آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل مکمل ہو گیا، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یہاں سے روانہ ہو گئی، لیکن جو یہاں سامان تھا وہ جل کر سارا خاکستر ہو چکا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بیسمنٹ ہے۔ یہ میرے کیمرہ مین ازلان چیپا آپ کو اوپر جا کے دکھائیں گے۔ یہ جو بیسمنٹ کے اوپر جو ایک اور فلور تھا، اس کی جو یہ زمین تھی وہ پوری دھس چکی ہے اندر، اور جتنی یہ جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ تھی وہ تمام تریاں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کولڈ ڈرنک کا سامان کا ایریا تھا، جہاں پر پیپسی اور دیگر 7 اپ جو دیگر جوسز تھے وہ یہاں پر موجود تھے۔ یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سے کچھ کولڈ ڈرنکس بچ چکی ہیں، لیکن ابھی بھی یہاں سے تھوڑا بہت دھواں اٹھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں دوسرا حصہ اپنے کیمرہ مین سے بولوں گی ذرا اس سائڈ آ جائیں اور اس سائڈ کی سچویشن بھی ذرا آ کر دکھائیں کہ اس کے ساتھ جو بنا ہوا ہے دوسرا، جہاں پر چپس وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوئی تھیں فوڈ پانڈا کے ویئر ہاؤس کی، تو یہاں پر ابھی بھی دھواں جو ہے وہ اٹھ رہا ہے۔ اپنے کیمرہ مین سے بولوں گی ذرا آگے جا کر دکھائیں کہ کیا سچویشن ہے ادھر کی۔ فی الحال KMC کی 10 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور 1122 کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی جو ہے وہ مطلب یہ 8 بجے کے قریب جو یہ لوگ روانہ ہوئے ہیں، اور آپ یہ سچویشن دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی تھوڑا بہت دھواں یہاں سے، اگر آپ کی صورتحال میں میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں یہ کہ یہاں پر بھی ابھی تھوڑا بہت دھواں اٹھ رہا ہے۔ جو فائر بریگیڈ کے ریسکیو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔ کوئی فین چل رہا تھا، کوئی فین گرا ہے، اچانک سے گرنے کے بعد شارٹ سرکٹ ہوا ہے، اور جو تار تھے اس سے جو اس طرف کوئی جو چپس وغیرہ جو پڑی ہوتی تھیلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو شاپرس ہوتی ہیں، اس سے آگ پکڑی اور یہ پورے بیسمنٹ میں پھیلی ہے۔ یہ بڑی مشکلوں سے آگ پر قابو پایا ہے، اس کو توڑنا پڑا، توڑ کے جو ہے وہ یہاں سے آگ بجھانے کی کوشش کی گئی۔ چپس وغیرہ کے جو پیکٹس ہیں اس میں تیزی سے آگ پھیلی ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارا سامان جل کر خاکستر ہو چکا ہے، لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تھوڑا بہت سامان جو تھا، جو کوشش کر سکے تھے انہوں نے نکالا تھا، وہ بھی کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ فی الحال جو ہے وہ ریسکیو کی ٹیمیں یہاں سے روانہ ہو گئی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یہاں سے روانہ ہو چکی ہیں۔ 10 فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے اس پر آگ پر قابو پایا، اور کوئی جانی نقصان اس واقعے میں نہیں ہوا ہے۔ جی، قانون پر عمل درآمد کروانے والے ہی قانون شکن نکلے۔ گاڑی روکنے پر کسٹمز افسر ایکسائز عملے سے لڑ پڑے۔ گاڑیوں میں سوار کسٹمز افسران نے مدد کے لیے کسٹمز اہلکاروں کو بلا لیا۔ کسٹمز عملے نے ایکسائز اہلکاروں کو دھکے دے کر سینئر افسر کو بھگا دیا۔ مزید اس رپورٹ میں۔
कस्टम ऑफिसर की गाड़ियां क्यों रोकी? कस्टम एहलकार एक्साइज अमले से लड़ पड़े। दोनों महकमों के एहलकार बाहम दस्त व गिरबां हो गए। कस्टम एहलकारों के एक्साइज अमले को धक्के और तल्ख अल्फाज का तबादला। शहर में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की रोड चेकिंग जारी मुहिम के दौरान सीवीओ पर एक्साइज अमले ने सरकारी नंबर प्लेट्स वाले कई गाड़ियों को रोका। कस्टम के आला ऑफिसर फैमिली के हमरा 4 गाड़ियों में सवार थे। ताहम गाड़ियों में सवार कस्टम अफसरान ने मदद के लिए कस्टम एहलकारों को बुलाया। सीनियर ऑफिसर और गाड़ी को छुड़वाने कस्टम एहलकार पहुंच गए और एक्साइज एहलकारों को धक्के देकर सीनियर ऑफिसर को भगा दिया। इसी पर मजीद बात करने कस्टम्स और एक्साइज एहलकारों में तसादुम, सिंध हुकूमत और विफाकी इदारा कस्टम्स आमने सामने आ गए। कस्टम्स हुकाम की जानिब से टेम्पर्ड चेसेस वाली गाड़ियाँ कानूनी करार। सिंध हुकूमत ने महकमा एक्साइज को टेम्पर्ड गाड़ियों को जब्त करने का हुक्म दे दिया। वजीर एक्साइज बोले टेम्पर्ड गाड़ियों को हल हाल में जब्त करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये कल से एक तनाज़ा चल रहा है महकमा एक्साइज सिंध और वफाकी इदारे कस्टम के दरमियान। कल ही वज़ीर आला सिंध ने अहकाम दिए थे कि जो टेम्पर्ड गाड़ियाँ हैं उनके चेचस और नंबर प्लेट टेम्पर्ड किए जाते हैं और उन गाड़ियों को रोड पे चलाया जाता है, जिस पर सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया था कि ऐसी तमाम गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। तो कल शाम को कुछ गाड़ियों को जब्त किया गया था और कुछ गाड़ियों को रोका भी गया था, जिस पे झगड़ा भी हुआ था कस्टम हुकाम और एक्साइज के दरमियान। आज मेरी बात हुई है यहाँ पे सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला से, जिनका कहना है कि महकमा एक्साइज के कानून के मुताबिक ये जो गाड़ियाँ टेम्पर्ड गाड़ियाँ हैं ये गैर कानूनी है, इनके नंबर प्लेट्स भी गैर कानूनी है, लिहाजा ऐसी गाड़ियों को जब्त करना कानूनी है। महकमा कस्टम के हुकाम ने जो गुज़श्ता रोज़ काम किया वो गैर कानूनी था और उस गैर कानूनी काम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी हक रखते हैं। और ये तमाम जो गाड़ियां हैं इस तरह की जिनके चेचस टेम्पर्ड किए गए हैं, नंबर प्लेट टेम्पर्ड किए गए हैं, ऐसी तमाम गाड़ियां जो पकड़ी हुई हैं, पकड़ी हुई गाड़ियों को किस तरह कानूनी शक्ल दिया जा सकता है, कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता कस्टम हुकाम बेशक कहते रहे कि ये कानूनी गाड़ियां हैं, लेकिन इन गाड़ियों को पकड़ा जाएगा, इनको जब्त किया जाएगा और सिंध का महकमा एक्साइज अपना जो ऑपरेशन है, ये उनका कहना है कि रोड चेकिंग मुहिम के दौरान हमें ये पता चला, रोड चेकिंग मुहिम के दौरान हमने ऐसी गाड़ियां पकड़ी हैं, तो लिहाजा ये रोड चेकिंग मुहिम जारी रहेगी और इस दौरान जितनी भी गाड़ियां अगर ऐसी टेम्पर्ड मिली हैं तो उनको पकड़ा जाएगा और तहवील में लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आजिज, आपने हमें आगाह किया। कोरंगी मेहरान टाउन में ट्रक की टक्कर से 4 साला बच्ची जाँ बहक। वाक़े का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफात शामिल की गई। बात करेंगे सलमान सलीम से, बताइएगा। देखिए बिल्कुल कोरंगी मेहरान टाउन में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। ट्रक की टक्कर से 4 साला बच्ची जाँ बहक हुई। जाँ बहक होने के बाद बच्ची की लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया था और उस पूरे वाक़े का जो मुकदमा है वो आज बच्ची के वालिद की मुद्दत में कोरंगी सनती एरिया थाने में दर्ज कर दिया गया है। वाक़े मुकदमा जैसे दर्ज हुआ तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने फरार होने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम कत्ल बिल सबब की दफात जो है वो मुकदमे में शामिल की गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मेहरान टाउन में मजदा की टक्कर से बच्ची जाँ बहक। सिटी 21 की टीम लवाहिकीन के पास पहुंच गई। बच्ची के नाना ने बताया कि 4 साला रुखसाना खेल रही थी कि हादसा पेश आया। अल्लाह की रजा के लिए हादसे के जिम्मेदारान को माफ़ करता हूँ। मजीद बताएंगे रिमशा इस्माइल। बिल्कुल शहर कायद में हम देख रहे हैं कि डंपर्स की टक्कर से हलाकतें हो रही हैं और ये वाक़यात जो है थम नहीं पा रहे हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कि ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो शहरियों को कुचल देते हैं और जिससे जो है वो शहरी जाँ बहक हो जाते हैं मौके पर ही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेहरान टाउन के इलाके, मेहरान टाउन में जलाल चौक के करीब और आज कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वाक़या पेश आया जिसमें एक बच्ची 4 साला बच्ची को जो है वो कुचल दिया है। इस वक्त हमारे साथ बच्ची के नाना मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताएगा बच्ची जो थी वो क्या कर रही थी, बाहर खेल रही थी जब ये वाकया पेश आया? बच्ची आ रही थी, रोज़े अफ्तारी का टाइम था, पीछे से आ रही थी। असल में उसका थोड़ा गफलत तो था। हमारे पास, हम तो इंसान है, हमने दुनिया में कोई चीज़ नहीं देखा, अल्लाह के कुरान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे पास पाक मुकद्दस किताब लिया है अल्लाह का कुरान, हमने सब चीज़ माफ़ कर दिया अपना। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बच्ची बाहर खेल रही थी जब ये बाहर आ रही थी रोड से, वहाँ से जो है थोड़ा उनका तो गफलत था, लेकिन पुलिस ने भी हमारे साथ, SHO ने भी अच्छा कॉपरेट किया। SP तक ऊपर से फ़ोन आए,
सब हमारे को बोला जो करना चाहते हो आप, हम करेंगे जितने बंदे के, और नाजायज़ तो हमें चाहिए नहीं था, और जिसलिए जो हो गया हमने तो अल्लाह के रज़ा के खातिर सब चीज़ छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। आप चाहते हैं ट्रक ड्राइवर्स जो है उनको सज़ा देनी चाहिए? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, हमने तो पाक मुकद्दस किताब जो है अल्लाह का कुरान आया, उससे ऊपर जो है ना कुछ भी नहीं है हमारा समझ में, जो इससे बाद में जो है ना सब चीज़ नीचे है दुनिया में, ऊपर नहीं है कुछ भी। हमने अल्लाह के रज़ा के खातिर सब चीज़ माफ़ कर दिया, और उसके माँ ने बाप ने सब ने यही चीज़ बोला, भाई हम अपना बच्ची को जो है सौदा नहीं करते, अल्लाह के रज़ा के खातिर पाक मुकद्दस किताब आया अल्लाह का कुरान, उसके लिए छोड़ दिया हमने सब चीज़। जी बिल्कुल, हमारे साथ बच्ची के नाना मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ये वाक़या जो पेश आया है ये अफसोसनाक है, लेकिन हमने जो है वो ट्रक ड्राइवर को जो है वो माफ़ कर दिया है, और पुलिस जो है उसने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ यकीनन ज़रूर जो है वो एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, ताकि ऐसे वाक़यात आगे फिर ना हों। मंगोपीर के मोहम्मद यूनुस समेत मुख्तलिफ लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। पाक कॉलोनी का मोहम्मद अकरम घर वापस पहुँचने की रिपोर्ट जमा होने पर अदालत ने शबाना बीबी की दरख्वास्त निपटा दी है। मंगोपीर के मोहम्मद यूनुस समेत मुख्तलिफ लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। पुलिस रिपोर्ट के बाद शबाना बीबी की दरख्वास्त निपटा दी गई। 10 साल से लापता मोहम्मद यूनुस का सुराग नहीं लगाया जा सका, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया अदालत में। अदालत के रिमार्क से क्या लापता शहरी की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाया जा सका है? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि लापता मोहम्मद यूनुस ने बैरून मुल्क कोई सफ़र नहीं किया। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी, मुलाजमीन को रिटायरमेंट फ़वाइद ना मिलने पर अदालत बरहम। पाकिस्तान स्टील मिल्स वजारत सनत, वजारत ख़जाना से फ़ंड्स की फराहमी की रिपोर्ट्स तलब कर ली। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी, मुलाजमीन को रिटायरमेंट फ़वाइद ना मिलने पर अदालत बरहम। पाकिस्तान स्टील मिल्स वजारत सनत, वजारत ख़जाना से फ़ंड्स की फराहमी की रिपोर्ट से तलब कर ली गई हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी का मामला है। अदालत ने कहा कि मुलाजमीन के वाजिबात फराहमी की रिपोर्ट 13 मार्च को पेश की जाए। वाजिबात कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, ये अहम मामला है। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्ज़िम अरमगान और शराज को अदालत पहुंचा दिया गया। आपको बताते चलें कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सेंट्रल जेल में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस, मुल्ज़िमान अरमगान और शराज को अदालत पहुंचा दिया गया है। केस की समाअत अब से कुछ देर बाद होगी। मुल्ज़िमान अरमगान और शराज को अदालत पहुंचा दिया गया है। केस की समाअत अब से कुछ देर बाद होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है, मुल्ज़िमान अरमगान और शराज को अदालत पहुंचा दिया गया। केस की समाअत अब से कुछ देर बाद होगी। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस, मुल्ज़िम अरमगान और शराज को अदालत पहुंचा दिया गया। इंटरमीडिएट इम्तहानात सर पर, लेकिन कॉलेजेस में तलबा की अदम हाजिरी। कोचिंग सेंटर्स की बहुतात, कॉलेजेस में पढ़ाई का रुझान कम होने लगा। माहिर तालीम प्रोफेसर बाबर शाह ने कॉलेजेस में तलबा की अदम दिलचस्पी की वजह कोचिंग सेंटर्स को करार दे दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सैयद उबैर राशिद से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए कराची भर में जो है आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के जो इम्तहानात का जो सिलसिला है 1 से 1.5 महीने बाद जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें एक अलमिया ये दिखाई देता है स्टूडेंट्स में, तलबा व तालिबात में, कि कॉलेजेस में जो है तालिब इल्मों का पढ़ाई करने का जो रुझान है वो इंतहाई कम दिखाई देता है। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर बाबर शाह जो कि प्रिंसिपल हैं जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज और बहैसियत माहिर तालीम भी जो है अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। क्या वजूहात है कि सुबह के टाइम पे सरकारी कॉलेजेस में जहाँ पर एग्ज़ाम के हवाले से मश्क की खुसूसी क्लासेस और निशिस्त का इनेकाद किया जाता है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद नहीं होते, क्या कहेंगे? उसमें बेसिकली 2 वजहें हैं। एक सबसे पहली वजह तो ये है कि बच्चे जो हैं वो कोचिंग माफिया के अंडर में आ चुके हैं। अब कोचिंग माफिया जो है वो कॉलेजेस में बच्चों को जाने ही नहीं देती।
وہ اپنے پیسے بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کوچنگ سینٹر میں ہی آ کے پڑھیں، اپنا سارا ٹائم یہیں پہ لگائیں، آپ کو کالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ گورنمنٹ کالجز میں آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ شفلنگ، اتنی زیادہ سیکٹری، ڈی جی، آر ڈی اور منسٹر کا فوکس ہے کہ وہ بائیو میٹرکس بھی چیک کر رہے ہیں ٹیچرز کی، اسٹوڈنٹس کی بائیو میٹرک کی طرف بھی ان کا رجحان جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی بائیو میٹرک ہو اور 75% سے کم اگر اٹینڈنس ہو تو ان کو ایگزامس میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود بچوں کا رجحان جو ہے وہ کوچنگ سینٹر کی طرف زیادہ ہے، اور بیسیکلی اس کی وجہ ماضی میں جو گورنمنٹ کالجز کا حال رہا ہے کہ وہاں تعلیم جو ہے برائے نام ہی دی جاتی تھی، اس وجہ سے جو کوچنگ سینٹر مافیا اس نے بچوں کو کیپچر کر لیا ہے. بابر شاہ صاحب نے کہا کہ کالجز کی ناقص کارکردگی جو کہ ماضی میں ہوا کرتی تھی، اس کی وجہ سے اب بچوں نے جو ہے ایک سہارا لیا کوچنگ سینٹر سے، لیکن وہ سہارا ابھی تک بدستور جاری ہے. اب تک اس سہارے سے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کالج کے طرف دوبارہ سے گامزن نہیں ہو سکے ہیں.